اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے خوش آمدید ہے آپ کا ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلری۔ بچوں، ہندوستان کا سیاسی نظریہ اور سیاسی انتظام کو بدلنے والی انڈین نیشنل کانگریس کا قیام دسمبر 1885 میں ممبئی شہر میں ہونے والی کانفرنس میں ہوا اور اس کے صدر ڈبلیو سی بنرجی تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کے لیے ریٹائرڈ شہری خدمتی افسر ایو ہیوم نے لگاتار کوششیں کرتے رہے اور وہ بمبئی، مدراس اور کلکتہ کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر کے عوام کی دلچسپیوں اور مفادات کے متعلق گفتگو بھی کی۔ تو بتاؤ بچوں، اعتدال پسندوں کا دور سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح بچوں، انڈین نیشنل کانگریس کے ابتدائی 20 سال کے دور کو اعتدال پسند کا دور کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال بچوں، اہم اعتدال پسندوں کے نام بتائیے۔ جی ہاں بچوں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ڈبلیو سی بنرجی، ایم جی رانا ڈے، دادا بھائی نوروجی، گوپال کرشن گوکھلے، یہ سب جو ہے اعتدال پسند کے اہم لیڈر ہیں۔ ڈرین تھیوری کے نظریے کو کس نے متعارف کیا، یعنی کہ کس نے یہ بتایا؟ ڈرین تھیوری کے نظریے کو دادا بھائی نوروجی نے کہا تھا۔ ڈرین تھیوری سے کیا مراد ہے بچوں، یعنی کہ ڈرین تھیوری کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان کی دولت انگلستان کو منتقل ہونا ہی ڈرین تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی کہ دولت کا بہاؤ جسے کہتے ہیں۔ کس نے اعتدال پسندوں کو سیاسی بھکاری کہا تھا؟ بالکل صحیح بچوں، انتہا پسندوں نے اعتدال پسندوں کو سیاسی بھکاری کہا تھا۔ اہم انتہا پسندوں کے نام بتائیے بچوں۔ بالکل صحیح بچوں، اہم انتہا پسندوں کے نام جو ہے بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے، ربندر گھوش، بپن چندر پال، یہ جو ہے انتہا پسند کے اہم لیڈرز ہیں۔ سوراج میرا پیدائشی حق ہے، یہ قول کس نے کہا تھا؟ بالکل صحیح بچوں، یہ جو بال گنگادھر تلک نے بال گنگادھر تلک کا جو قول تھا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے۔ بچوں، اس تصویر کو پہچانو۔ بالکل صحیح بچوں، یہ جو ہے گاندھی جی ہے نا بچوں؟ چلو بچوں، آج ہم لوگ گاندھی دور اور آزادی کی جدوجہد کا مطالعہ کریں گے، اس کے اہم نکات کو جانیں گے، جو کہ گاندھی جی کی زندگی، ہندوستان میں گاندھی جی کی ابتدائی جدوجہد، گاندھی جی کے کارنامے، جلیان والا باغ، خلافت تحریک، تحریک عدم تعاون، گول میز کانفرنس، بھارت چھوڑ دو تحریک، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور ان کی اصلاحات، سبھاش چندر بوس اور آزاد ہند فوج، محمد علی جناح اور جے پرکاش نارائن اور جواہر لال نہرو کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ چلو بچوں، چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف، جو کہ ابتدائی زندگی اور نشوونما۔ گاندھی جی کی ابتدائی زندگی اور نشوونما۔ گاندھی جی جو ہے 2 اکتوبر 1869 میں گجرات میں کاٹھیا واڑ ضلع کے پور بندر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ آپ کو میپ میں نقشے میں یہاں پر نظر آ رہا ہے، دیکھو یہاں پر بچوں، گجرات میں پور بندر یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے والدین جو ہے کرم چند گاندھی اور پتلی بائی تھی، تو یہاں پہ تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ 1888 میں قانون کی پڑھائی کے لیے انگلینڈ گئے۔ گاندھی جی نے جو ہے انگلینڈ کو 1888 میں گئے، جو قانون کی پڑھائی کے لیے۔ اسی طرح سے
93 में दादा अब्दुल्ला और कंपनी की वकालत के लिए अफ्रीका के नाटल गए। यहाँ पर है कि आपको मैप में साउथ अफ्रीका में नजर आ रहा है। ये जो प्लेस है बच्चों, ये जो है नाटल है यहाँ पर। उसी तरह से गांधी जी, हिंदुस्तान में गांधी जी और इब्तिदाई तहरीकात का मुतालिया करेंगे बच्चों। 1916 सन ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को कायम किए। देखो यहाँ पर बच्चों, गुजरात में अहमदाबाद जो है, यहाँ पर जो है साबरमती आश्रम जो है इन्होंने ओपन किया गया था, कायम किया गया था। चंपारण मूवमेंट 1917 सन ईस्वी में बिहार के चंपारण में चंपारण तहरीक की शुरुआत की और अंग्रेजी सरकार को झुकाया, यानी कि जो डिमांड था वो डिमांड जो है फुलफिल हुआ यहाँ पर। कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद 1918 सन ईस्वी में अहमदाबाद के कपास की मिल के मजदूरों को कामयाबी भी दिलाई गई, यानी कि इन पर भी जो जुल्म हो रहा था, कपास के मिल के मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा था, उनको जुल्म से जो बचाने के लिए भी कामयाबी दिलाई गई। 1918 सन ईस्वी में खेड़ा, यानी कि जो यहाँ पर गुजरात में है, अहमदाबाद के करीब में है, यहाँ पे नजर आ रहा, ऑलरेडी मैं मार्क की हुई हूँ यहाँ पर। गुजरात में किसानों को टैक्स के ताल्लुक से तहरीक की गई और वो तहरीक भी जो है कामयाबी हुई। अपने उसूलों को हरिजन और यंग इंडिया नाम में अखबारात में शाया किए। गांधी जी के जो भी उसूल थे, उन उसूलों को जो है यंग इंडिया और हरिजन अखबारात में जो है इन्होंने शाया किया गया, इनके थॉट्स को जो है इसमें लिखा गया है। गांधी जिद्दोजहद के आलात वो हथियारात। सत्याग्रह का माना देखेंगे बच्चों, अहिंसा और हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद। सत्याग्रह यानी कि सच की मांग या सच के लिए दबाव डालना है, क्या है, सत्याग्रह कहा जाता है। अहिंसा यानी कि हथियारी इस्लाह के इस्तेमाल के खिलाफ अहिंसा। हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद, बगैर मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के आजादी को हासिल करना और मुस्तकल में एक रियासत बन के उभरना नामुमकिन था बोल के इन्होंने कहा था, यानी कि बगैर हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है बोलकर गांधी जी के ये ख्यालात थे। तहरीक अदम ताउन की उरूज के मौके। रोल एक्ट, इस एक्ट के तहत बगैर किसी तहकीक और सोच विचार के कैद कर लिया जाता था और मुजरिम ठहराकर सजा भी सुनाई जाती थी, यानी कि अगर बगैर तहकीक किए के लोगों पर अगर से डाउट हो जाता तो उन लोगों को क्या कर देते थे, मुजरिम ठहराकर है कि सजा भी सुनाई जाती थी। तो ये रोल एक्ट का कानून था। तो इस पर गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक अजीम हड़ताल बुलाई गई। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग मकाम में बैसाखी त्योहार के मौके पर एहतजाजी इजलास जो है मुनक्किद किया गया, यानी कि यहाँ पर बैसाखी के त्योहार के वक्त में जो है लोगों को इकट्ठा किया गया था। जनरल डायर ने उस वक्त में जो है फायरिंग कर दी और इसके नतीजे में 380 अफराद जो है हिलाक होकर कई हजार लोगों जो है जख्मी भी हो गए थे। तो यहाँ पे दीवार पे यहाँ पर मार्क नजर आ रहा है, देखो बच्चों, बुलेट्स के मार्क है यहाँ पर दीवार पे नजर आ रहे हैं। तो ये जो है डायर जो है, जनरल डायर जो है, इन्होंने ही हुक्म दिया था कि फायरिंग करने के लिए उस वक्त में। तो उधम सिंह ने जनरल डायर का कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है उधम सिंह की। तो गांधी जी ने इस वक्त में जो है अदम ताउन तहरीक का ऐलान किया गया। चलते हैं बच्चों दूसरी तहरीक की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि खिलाफत तहरीक है। खिलाफत तहरीक, यहाँ पे टर्की नजर आ रहा है बच्चों आपको मैप में। तुर्की सुल्तान मुसलमानों के मजहबी रहनुमा थे।
तुर्की सुल्तान जो है मुसलमानों के मजहबी रहनुमा थे और खलीफा पर होने वाले मुजालिम की वजह से जो है सारे आलम के मुसलमानों ने एहतजाज जो है शुरू कर दिया था। तो इस बिना पर जो है हिंदुस्तान में मोहम्मद अली और शौकत अली ने तहरीक शुरू की, जो 1919 में तहरीक शुरू की, खिलाफत तहरीक। इस तहरीक में जो है बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों की शिरकत को गांधी जी ने लाजिमी करार दिया गया और कई कौमी रहनुमाओं और कांग्रेस तंजीम ने खिलाफत तहरीक की मुकम्मल हिमायत भी की, यानी कि सपोर्ट भी किया। खिलाफत तहरीक की मुकम्मल तौर पर जो है सपोर्ट किया गया। गांधी जी का जो कौल था कि यहाँ पर हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होना है, यानी कि हिंदू और मुसलमान जब तक यूनिटी नहीं आएगी, हिंदू और मुसलमानों में एक जहती नहीं रहेगी, तब तक जो है हम लोग हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालना क्या है, नामुमकिन है बोलकर कहा गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है 1919 में गांधी जी ने इस तहरीक की शुरुआत की। तो मकसद क्या था यहाँ पर, जलियांवाला बाग जैसे साना को, यानी कि जो हादसा हुआ था उसको मुस्तकबिल में, यानी कि फ्यूचर में जो है उसको रोकना है और अंग्रेजों की इंतजामी हुकूमत की मुकम्मल मुखालिफत करना है, अगेंस्ट होना है यहाँ पर। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बाइकाट किया गया, इनकार किया गया जो भी अंग्रेजों के स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, एजाजात थे और खुतबात को जो है वापस दे दिया गया और सरकारी कामों से शिरकत ले ली गई और गैर मुल्की अशिया को बाइकॉट किया गया। तो कौमी यूनिवर्सिटियां भी है क्या कायम की गई, जो कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ओपन किए गए, यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए। प्रिंस ऑफ वेल्स 1919 में शहजादा प्रिंस ऑफ वेल्स की हिंदुस्तान आमद पर प्रोग्राम की मुखालिफत भी की गई, हिंदुस्तान आमद प्रोग्राम की मुखालिफत की गई। कब? 1921 में। तो उसके बाद जो है बच्चों चोरी चोरा हादसा जो है 5 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन के रूबरू जो है तकरीबन 3000 किसानों का एक ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप जो है 3000 लोगों का एक ग्रुप जो है जमा हुआ था। तो यहाँ पे पिक्चर में, ये नक्शे में आपको चोरी चोरा का पॉइंट है कि नजर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन के करीब में जो है 300 किसानों का एक ग्रुप जो है जमा होता है और पुलिस इस एहतजाज से बेजार होकर क्या करते हैं, किसानों के ग्रुप को है ना, किसानों के ग्रुप पर गोलियां जो है बरसाते हैं। तो इस वजह से जो है किसानों ने भी है ना पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिस को जिंदा जल गए, 22 पुलिस जो है जिंदा जल गए और पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चोरी चोरा का इंसिडेंट किस तरह से हुआ है 1922 में। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन को वापस ले लिया गया। चलते दूसरे टॉपिक की तरफ। सिविल नाफरमानी तहरीक के असबाब क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। 1927 ईस्वी में यानी कि 1927 में जो है साइमन कमीशन का तकर्रुर हुआ। लाहौर में हो रहे बंद के दौरान जो है लाला लाजपत राय लाठीचार्ज करने की वजह से मौत हो गई, यानी कि लाला लाजपत राय की मौत जो है लाठीचार्ज की वजह से लाहौर में हुई। तो अंग्रेज लेबर पार्टी के वजीर आजम राम से मैकडोनाल्ड वाइसरॉय लॉर्ड डोनाल्ड की बाहमी गुफ्तगू से हिंदुस्तान को डोमिनियन रियासत का मकाम देने का ऐलान किया गया। यानी कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज जो है हुकूमत करना है और हिंदुस्तानिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, हिंदुस्तानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है और अंग्रेज जो है हुकूमत करना था। तो ये जो है डोमिनियन स्टेटस का मतलब था। तो ये यहाँ पर बात है नए रखते हैं, ऐलान करते हैं। पूर्ण स्वराज
26 जनवरी 1930 सन ईस्वी को 26 जनवरी 1930 सन ईस्वी को पहली बार यौम जश्न आज़ादी मनाया गया। इस इजलास ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनाई गई तहरीक तर्क सवालात की मुकम्मल आज़ादी गांधी के जिम्मे दे दी गई। तो यहाँ पर 1930 सन ईस्वी में 26 जनवरी 1930 सन ईस्वी को जो है पहली बार यौम जश्न आज़ादी मनाया गया था। तो इसी 26 जनवरी 1930 का जो ये दिन था, इसको याद रखने के लिए आगे चलकर भी जो है, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाते हैं बच्चों। डांडी मार्च। फरवरी 1930 सन ईस्वी में कांग्रेस की कारकर्दगी कमेटी ने साबरमती आश्रम के पास सिविल नाफरमानी तहरीक के इनेकाद का फैसला किया गया। कहां पर? साबरमती आश्रम के पास में। तो गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को 11 नुकात यानी कि जो 11 डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स पर मुश्तमिल मांगों का एक पर्चा वाइसराय लॉर्ड अरविन को लिखा। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपने पैरोकारों यानी कि इनके फॉलोअर्स जो थे, गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, उनके साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, यानी कि साबरमती आश्रम से जो है यहाँ पे है, देखो बच्चों, साबरमती आश्रम से लेकर यहाँ के पॉइंट से स्टार्ट होते हुए जो है डांडी मार्च तक, यहाँ तक जो है पैदल है ना सफर करते हैं। तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया डांडी मार्च के साहिल को पहुंचकर जो है वहां पर एक पहुंचकर जो है नमक है ना तैयार करते हैं। उस वक्त में जो है नमक पर बहुत ही भारी टैक्स था। गांधी अरविंद माहिदा जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए जो है यहाँ पर गांधी अरविंद माहिदा इसको कहा जाता है। 16 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो है कौमी तहरीक का हफ्ता मनाया गया। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के मखसूस इंतखाबी हलके को राइज करने की पेशकश की गई और इससे अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान आर्जी तफरुकात जो है पैदा हुए। पूना मोहदा मजहबी इंतखाबी हलके के बजाय आम इंतखाबी हलके में ही चंद इलाकों ने अछूतों के लिए मखसूस किया और इन इलाकों में अछूत नुमाइंदगी होगी। 1935 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है सरकार ने वकाफियत और रियासती हुकूमत के क़याम के मौके फराहम किए थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में मुतालिया करेंगे बच्चों। यहाँ पर भारत छोड़ दो तहरीक यानी कि यहाँ पर तजावीज जो है हिंदुस्तान को डोमिनियन रियासत का दर्जा देना, कांग्रेस ने इनकार किया गया और भारत छोड़ दो तहरीक का ऐलान यहाँ पर करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट शाख के अहम कायद थे। सोशलिस्ट ने दी फ्री स्ट्रगल फ्रंट नामी दस्तावेज के जरिए अपने कार्रवाइयों को अंजाम देते थे। तो गांधी जी का यहाँ पे नारा था करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ दो तहरीक 1942 सन ईस्वी में हुई। तो 1937 सन ईस्वी का इंतखाब के बाद जो है सरकार की तश्कील में मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया गया। तो इस वक्त में जो है यौम निजात यानी कि विमुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने यौम निजात मनाया और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। किसानों के एहतजाज। किसानों ने चंपारण जिले में नील की काश्त करने से इनकार कर दिया। यहाँ पे नील की काश्त आपको नजर आ रही, देखो बच्चों। तो इस नील की काश्त करने से इनकार कर दिया और लगान के खिलाफ एहतजाज किए गए। और यहाँ पर नजरिया जो है कुछ तंजीमें कांग्रेस से मुतासिर थी तो कुछ जो है कार्ल मार्क्स के नजरियात से मुतासिर थे। तो यहाँ पर चंपारण का प्लेस जो है यहाँ पर मैप में नजर आ रहा है बच्चों, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ पर। किसानों के एहतजाज।
महाराष्ट्र में जो है किसानों ने कम वेजेस के खिलाफ जो है एहतजाज किया, यानी कि उनको जो है वेजेस जो है यहाँ पर बहुत ही कम मिल रहा था, सैलरी जो है बहुत ही कम मिल रही थी। बंगाल में भी एहतजाज हो रहा था, जमींदारों के इस्तेसाल के खिलाफ यहाँ पर आवाज बुलंद थी, यानी कि जमींदारों के इस्तेसाल, यानी कि जमींदार जो है यहाँ पर जुल्म कर रहे थे। तेलंगाना में भी जो है जमींदारों को जो है यहाँ पर चुनौती दे दी गई थी। मजदूरों की बगावत, प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कलकत्ता और बम्बई टेक्सटाइल मजदूरों ने कौमी बेदारी पैदा की और मद्रास लेबर यूनियन कायम की गई। 1827 ईस्वी में कलकत्ता में जो है पटसन सूती पारचा बाफी और रेलवे के सनतों के लोग अपने हुकूक के खातिर जो है मुंजिम होने लगे थे। कबायली तहरीक, अहम बगावत जो है संतलों की बगावत और मुंडा तहरीक यहाँ पर अहम है। असबाब क्यों हुआ यहाँ पर कबायली तहरीक क्यों हुई बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स और फॉरेस्ट एक्ट जारी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स और फॉरेस्ट एक्ट जो है जारी किया गया था, इस वजह से जो है कबायली तहरीक हिंदुस्तान में हुई। सांतला कबाइल जो है ये कबीला बंगाल और उड़ीसा के पहाड़ियों में बसते थे। जब अंग्रेजों ने दोआमी बंदोबस्त का निजाम नाफिज किया गया तो सांतला कबाइल ने तहरीक शुरू की। इस्तेहसाल, यहाँ पर जुल्म हुआ, यहाँ पर कबाइली तहरीक कबाइली लोगों पर जो है यहाँ पर जुल्म हो रहा था। जमींदारों और साहूकारों और अंग्रेज अहदेदारों ने इस्तेहसाल कर रहे थे, किन पर? ये ट्राइबल पर, सांतला ट्राइब पर। सांतलाओं ने भी, यानी कि सांतला ट्राइब जो था, जो कबाइल था, ने फैसला किया गया कि मालदारों और मुमताज शहरियों को लूटेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों सुभाष चंद्र बोस की तरफ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुतालिया करेंगे। हिंदुस्तान के इनकलाबी मुजाहिदीन में सबसे ज्यादा नुमाया जो है सुभाष चंद्र बोस थे। तो इंडियन सोशलिस्ट में जो है चौथा दर्जा हासिल किया गया और नेताजी के नाम से इनको ये जो है मशहूर हुए। इंडियन सिविल सर्विस में चौथा दर्जा हासिल किया गया था और नेताजी के नाम से मकबूल थे, मशहूर थे। उन्नीस सौ 30 में इब्तिदाई दिनों में सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में मुकीम हिंदुस्तानियों को मुंजिम करने और इन्हें मसला करने की कोशिश की गई और यूरोप में कम्युनिज्म और सोशलिज्म के फरोग ने हिंदुस्तान में कांग्रेस को मुतासिर किया गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1834 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी कायम किया गया। गांधी जी की हिमायत से बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुर सेशन के सदर बने। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरा सेशन में गांधी जी की मुखालिफत के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सदर बन बैठे और इसके साथ ही जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के दरमियान इख्तिलाफात और बढ़ने लगे। तो नेताजी जो है कांग्रेस जो पार्टी थी उसे छोड़कर जो है एक पार्टी बनाई जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जो है बर्तानिया की फौजी तैयारियों और आलमी जंग में हिंदुस्तान की शिरकत के खिलाफ थे। तो अंग्रेजों ने सुभाष को घर में नजरबंद कर दिया, यानी कि कैद कर दिया घर में ही,
اور سبھاش چندر بوس وہاں سے فرار ہو کر کہاں پر جرمنی پہنچتے ہیں. جرمنی میں موجود ہندوستانی جنگی مجرمی پر مشتمل ایک فوج تیار کرنے کی کوشش کی اور جرمنی سے آزاد ہند ریڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنی تقاریر بھی نشر کیے. تو سبھاش چندر بوس نے راج بہاری بوس سے ہاتھ ملایا اور ایک فوجی شعبہ قائم کر رکھا تھا اور اس کا نام جو ہے آزاد ہند فوج رکھا گیا. دہلی چلو کا نعرہ بھی دیا گیا اور ہندوستانیوں پر زور دیا گیا کہ مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. آزاد ہند فوج میں آزاد ہند فوج میں جو ہے خواتین کی ایک رسالی بھی تھی اور اس دہلی چلو کا نعرہ بھی یہاں پر دیا گیا اور ہندوستانیوں پر زور دیا گیا کہ مجھے خون دو اور میں تمہیں آزادی دوں گا. اور اسی طرح سے انگریز اور انڈین نیشنل آرمی کے سپاہیوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی اور اسی دوران سبھاش ایک ہوائی حادثے میں ہلاک بھی ہو گئے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا یہ مضبوط یقین تھا کہ بغیر سماجی آزادی کے سیاسی آزادی بے معنی ہے. جب تک ہم لوگوں کو سماجی آزادی نہیں ملے گی تب تک ہم لوگوں کو سیاسی آزادی کا کوئی یعنی کہ انسان کو جو ہے سماجی آزادی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے سیاسی آزادی کے مقابلے میں. طبقاتی نظام کا گہرا مطالعہ کیا گیا. ماہد اور کالارام مندر کے تحریکات شروع کیے. یہاں پر دیکھو بچوں ایک ٹینک یہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو تالاب کہا جاتا ہے یہ مہاد ٹینک تھا تالاب تھا اور ایک کالارام ٹیمپل تھا جہاں پر ہے کیا ہریجنس کو ہے کیا جانے کے لیے منع کیا جاتا تھا. تو یہاں پر تحریکات شروع کیے گئے. تینوں گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور اچھوتوں کے لیے ہریجنس کے لیے ایک الگ انتخابی حلقے کا مطالعہ بھی کیا گیا اور گاندھی اور امبیڈکر کے درمیان تنازع یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں ممبئی لیجسلیٹو کونسل کے رکن کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بھی بخوبی انہوں نے سنبھالی. بہشت ہتاکرنی سبھا اور دو الگ پارٹیوں اور سوتنترا کارمکا پارٹی قائم کی. دستور مسودہ کمیٹی کے متفقہ طور پر چیئرمین بھی چنے گئے. دستور میں مساوات کی حمایت کی اور چھوت چھات کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کیا گیا. طبقہ واریت سے مایوس ہو کر انہوں نے ہندو مت ترک کی یعنی کہ ہندو مذہب سے چھوڑ کر جو ہے بدھ مذہب کو انہوں نے گلے لگا لیا. بدھ مذہب کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کارنامے حیات کے طور پر ان کی وفات کے بعد انہیں بھارت رتن کے خطاب سے نوازا گیا. جواہر لال نہرو کا سیاست میں داخلہ ہوم رول ایجیٹیشنز کے ذریعے ہوتا ہے. 1929 کے لاہور کنونشن کے صدر بھی تھے اور نہرو کے نظریات نے سیاسی سرگرمیوں کو نیا رخ دیا. کمیونسٹ آئیڈیالوجی سے متاثر بھی تھے. نہرو اور سبھاش چندر بوس نے کانگریس سوشلسٹ پارٹی بھی قائم کی. انڈین نیشنل کانگریس کے 50ویں کنونشن میں نہرو نے سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات کے بارے میں نسبتاً نرم رویہ اختیار کیا گیا. یہاں پر کانگریس میں ہندوستان میں مکمل جمہوریت کے خواہاں بھی تھے اور وہ
सोशलिज्म के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। नेहरू की जिद्दोजहद नेहरू को जदीद हिंदुस्तान में सनतों के क़याम के मेमार की हैसियत से भी देखते हैं और हिंदुस्तान में एक मखलूत मुआशी निज़ाम को मुतारुफ करना था और जिसमें कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों के उसूल शामिल हैं। 5 साला मंसूबों के जरिए हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करने वाले पहले शख्स हैं और अमन व हम आहंगी के फार्मूले के अमल में लाने के लिए जो है कोशां रहे, यानी कि स्ट्रगल किए यहाँ पर भी। और इनका इंतकाल जो है 1964 सन ईस्वी में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 सन ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से भी काम किया गया। 1916 सन ईस्वी में मुनक्कद कई होम रूल तहरीकों में शिरकत भी किए। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर तकारीर भी किए गए। रोल्ड एक्ट की मजम्मत की और इसी बिना पर सेंट्रल लीगल एंड वेजरी कमेटी से इस्तीफा भी दिया गया। 1937 सन ईस्वी में इंतखाबात के बाद जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग हुकूमत तश्कील देने में नाकाम हुए और आज़ादी के वक्त वो कौम को तकसीम करने में कामयाब भी रहे। तकसीम हिंद 1940 सन ईस्वी के लाहौर सेशन में जिन्ना ने ऐलान किया कि हिंदू और मुसलमान एक मुल्क में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में सियासी उथल पुथल को दूर करने की गर्ज से मुतअद्दिद इक़दामात किए गए और हुकूमत ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बातचीत भी की गई और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 सन ईस्वी को रास्त अमल का दिन मनाया और इसके नतीजे में सारे मुल्क में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात फूट पड़े और मार्च 1947 सन ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी, जिन्ना और दूसरे रहनुमाओं से तबादला ख्याल भी किया गया। जुलाई 1947 सन ईस्वी में हिंदुस्तान की आजादी का कामिल यानी कि यहाँ पर बिल जो है पास हुआ और एक्ट भी बना। 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए और 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मेमार महात्मा गांधी जब इबादत में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो नथुराम गोडसे, यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही बच्चों नथुराम गोडसे की, तो नथुराम गोडसे ने इन्हें शहीद कर दिया गया और गांधी जी की उम्मीदें, इंसानी खिदमत, इत्तेहाद, तलखीन और उनके ख्वाब एक नमूने के तौर पर जो है बाकी रह गए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का ये सबक समझ में आया होगा। अब मैं चंद सवालात पूछूंगी आपको और उसके जवाब आपको देना है। गांधी जी के वालिदैन के नाम बताइए। गांधी जी के आलात व हथियारात क्या थे। आजादी की जिद्दोजहद में सुभाष चंद्र बोस के अहम कारनामे बयान कीजिए। नेहरू ने बतौर वजीर आजम मुल्क को क्या क्या तोहफे दिए, समझाइए। बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही जवाब कहा है। यहाँ पर करमचंद गांधी और पुतलीबाई जो है गांधी जी के वालिदैन हैं। गांधी जी के आलात जो है हथियारात सत्याग्रह, अहिंसा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। आजादी की जिद्दोजहद में सुभाष चंद्र बोस के अहम कारनामे आपको बताना है बच्चों। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स यानी क्या लिखना है, यानी कि आजादी की जिद्दोजहद के लिए सुभाष चंद्र बोस के कारनामे क्या क्या हैं वो आपको बताना है। नेहरू ने बतौर वजीर आजम मुल्क को क्या क्या तोहफे दिए हैं समझाना है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को
क्या क्या लिखना है यहाँ पर, नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या खिदमत किए हैं वो बताना है, और हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या क्या किया, पंसाला मंसूबा और इंडस्ट्रीज कायम किए गए, वो सब जो है आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। चलो बच्चों घर पर काम ले लीजिए। तहरीक अदम ताउन के अहम प्रोग्राम को समझाइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाजी आजादी को तरजीह दी। अपने ख्यालात बयान कीजिए यहाँ पर। तहरीक अदम ताउन के दौरान होने वाले तरक्कियात कीजिए, बताइए। और अदम ताउन तहरीक में गांधी जी के अहम प्रोग्रामों को बयान करना है। आजादी की जिद्दोजहद में किसानों का एहतजाजी तंजीमों ने नुमायां रोल अदा किया है। इस लेसन में, इस सबक में बच्चों आपको 4 मार्क क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसमें ज्यादातर जो है 4 मार्क क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए हैं बच्चों। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप तमाम को आज का सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।